Hi and welcome to India TV News Digital. I am Pavni Jain and today we are in conversation with debutant director Pia Sukanya from Bombaria and actress Shilpa Shukla. To start with the title of the film, I would really like to know what Bombaria means. Bombaria is a made-up word, Okay. and yeah, which the writer-producer of the film, Michael Ward, who's also my husband, he came up with one day. We were looking for a title for the movie, and he said, "What do you think of Bombaria?" Because a few days before, he had asked me, "What does this word Beria mean?" He speaks Hindi, but he didn't know what this word means. So I told him ki it means like enemy. But an enemy is also your lover. Um, and he thought about it for a few days, and then he said this word Bombaria to me, and I went, I love it. And it's, I love it because you have to ask the question. You say, what does it mean? And it's catchy. It's catchy. It evokes something, like you ask the question. It evokes curiosity, but it's also fun. It does sound like a comedy. Peppy sort of. Yeah. So it's a one-day story where Radhika Apte's character, who plays Meghna, a film PR agent, she gets her phone stolen on the streets of Mumbai. And it's the tale of what happens to her and the bunch of idiots that she meets along the way, and the much larger story that she finds herself in. So, ma'am, जैसी आपकी पहली picture है, so how does it feel to be a director? Oh, it's the best job in the universe. Okay. Absolutely. Because it's the hardest job, I think, in the world. But it is extremely creatively gratifying, and it's such a collaborative art field in the arts. तो आप हर art form को इसमें incorporate कर सकते हैं film making में. आपको मैं musician भी हूँ. I used to be a professional singer. So filmmaking is musical. It has rhythm. It has so much to do with painting and pictures, photography, the art of performance and acting and bringing a human being to life. इसमें सब कुछ है in the art form of filmmaking. And being a director, I get the privilege of playing daily. शिल्पा जी, आप अपने रोल के बारे में बताइए, क्योंकि जैसे पिया जी ने बोला कि पॉलिटिकली कुछ रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं पूरे ट्रेलर से यही लग रहा है कि कॉमेडी इज़ इन्वॉल्व. तो आप अपने रोल के बारे में थोड़ा. बिल्कुल कॉमेडी इज़ इन्वॉल्व, और ऐसा है कि वो सिचुएशन तो बड़ी सीरियस है ना, लेकिन औरों को वो कॉमेडी लग सकती है. मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर, उसका नाम है इरावती आंग्रे. वो डेप्यूटी होम मिनिस्टर हैं, बॉलीवुड में शौक़ रखती हैं. और उन्हें एक फेडिंग सुपरस्टार से प्यार टाइप का है लेकिन उन्हें पावर भी चाहिए, उन्हें सब कुछ चाहिए, उन्हें ब्यूटी भी चाहिए, उन्हें सब कुछ पकड़ के रखना चाहती हैं. लेकिन इनका फ़ोन गुमने से बहुत कुछ है जो छूट सकता है उनसे भी, तो वो कैसे मैनिपुलेट करेगी या करती है, क्या करती है बीइंग अ पॉलिटिशियन, और इस पूरी कहानी को बताने में या उसमें एक अहम किरदार है, क्योंकि जो भी चेंजेस होने हैं, जो बड़े चेंजेस होने हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पे होने हैं. वो तभी होंगे जब वो वहाँ पे वो लॉ बनेगा, वो गाइडलाइंस आएंगी, तो वो उस लेवल पे जब चेंज वो आएंगे, तभी वो नीचे तक आम जनता तक वो चेंजेस पहुँचेंगे. तो उस लिहाज से बहुत ही ज़रूरी स्टैंडिंग है इनकी. वो जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगी तब तक पता नहीं होगा कि नहीं होगा. तो जैसे कि आपने कहा कि जिसका फ़ोन खो जाता है, विच इज़ बीइंग प्लेड बाय राधिका आप्टे, और आप एक जो होम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं, इन दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. यही आपका मतलब है कहने का? हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. एकदम पसंद नहीं करती है उसको. तो यू थिंक इट्स द राइट टाइम कि बॉम्बेरिया रिलीज़ हो रही है? आर योर होप्स हाई? माई होप्स आर वेरी हाई. कल रात को ही हमने एक बहुत स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, hosted by the Additional Solicitor General of India, Pinky Anand, for the judiciary, members of the judiciary. And मैंने फिल्म पहली बार एक लाइव ऑडियंस के साथ देखी.
you know, अभी तक मैं अपने ही बबल में खुद के लिए देख रही थी रोज़, and it was a very successful screening. People got it. They got the humor, and they were really engaged with the story. तो and कुछ और ही हमने बना दिया है. It's very, very different, very, very fresh, for lack of a better word. And जो आप फिल्मों की बात कर रही हैं, मुझे याद है जब मैंने like न्यूटन जैसी फिल्म देखी, अंधाधुन, एक हम, you know, you're laughing but you're so engaged also, and वो जो feeling हम सबको आई ना कि ये क्या हमने देख लिया, I think वो feeling, we are in a process of our cinema changing. It's a smart comedy. You have to come ready to think and engage. But that is what the audience is crying for. So I'm very hopeful. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा एक ऐसा बच्चा है जो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, और उसको बनाने में इतनी मशक्क़त और मेहनत लगती है, और वो उस टाइम वो प्रोसेस आपको लग सकता है बहुत भारी है, बट मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है कि जब वो फिल्म आती है उसे साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन इस फिल्म के बारे में भी जैसा कुछ एक टाइमलेस क्वालिटी है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसका रेलेवेंस सडनली बहुत ज़्यादा हो जाता है. इस फिल्म का रेलेवेंस जो है अभी वो माइंड ब्लोइंग है, और ये कुछ ऐसे सवाल खड़े कर रही है, वो भी हंसा के, ऐसा भी नहीं है कि आपको हथौड़ा मार के बोल रही है कि अब सुनो सीरियसली सोचो, बड़े आराम से बता रही है और आपको एक्चुअली सोचने पे मजबूर कर रही है कि कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप डर का सहारा लेंगे या आप निडर होंगे, और आप निडर कब होंगे जब आपको कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी. और it's a film that'll ask you to think, and think positively, and think how you can be the change that you've been talking about. क्योंकि आप सिंगर और सॉन्ग राइटर भी रह चुकी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ इस फिल्म का म्यूज़िक किस तरीके का होगा, क्योंकि कॉमेडी इज़ वन ऑफ द जॉनर्स जिसमें म्यूज़िक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग द ऑडियंस. तो इस फिल्म का म्यूज़िक हमें किस तरीके का सुनने को मिलेगा? देखिए, जब हम हिंदी सिनेमा के बारे में बात करते हैं तो हम वो शब्द यूज़ करते हैं म्यूज़िक. इट्स बिकम सिनोनिमस विद सॉन्ग, राइट. गाने हैं इसमें, 3 मज़ेदार गाने हैं, 2 बहुत ही सुंदर गाने हैं, एंड देयर इज़ वन रियली फन सॉन्ग दैट इज़ encapsulating the spirit of the movie, called संकी. और एक और गाना है बैरिया, जिससे हमारा टाइटल आया था, बॉम्बेरिया, और एंड सजदे करूं, which is a very soulful song. They're all wonderful songs, and they move the story forward. They are narrative songs, right? But जब हम सिनेमा as a whole ग्लोबल एंटिटी की हम बात करते हैं, और तब हम ये शब्द यूज़ करते हैं म्यूज़िक, तब हम एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट द सॉन्ग्स बट ऑल्सो द म्यूज़िक दैट इज़ विद इन द फिल्म, द स्कोर ऑफ द फिल्म. एंड ये फिल्म का जो स्कोर भी है वो भी बहुत ही अनयूजुअल और स्पेशल है. जैसे कि हमने एक पूरा ऑपरा किया है ऑफ साइलेंट नाइट in the climax of the movie. Okay. And आप मेरे से पहले पूछ रहे थे कि as a musician, what is this transition? तो by default मैंने उस opera में भी गाया हुआ है, even though I'm a Hindustani classical trained singer. Music, is so many things in this movie, and it's a huge part of the storytelling. Thank you for talking to us. It was lovely talking to both of you. Thank you. Thanks for watching this video. For more such entertaining content, please log on to www.indiatvnews.com.